Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering budget, taxation, and within taxation, we will be covering the indirect taxes and goods and services tax. So, first of all, uh, we look at the administrative structure for indirect taxes in India. We have the ministry. So, the nodal ministry for taxation, indirect taxation, will be Ministry of Finance. ठीक है. देन डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. सो टैक्सेशन है तो ऑब्वियसली इट विल कम इन रेवेन्यू, इट वोंट बी कमिंग इन एक्सपेंडिचर. देन बोर्ड क्या रहेगा इसका, इट विल कम अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ठीक है. Then this Central Board of Indirect Taxes and Customs was earlier known as the Central Board of Excise and Customs. However, it was renamed in Budget 2018. Next, we'll be looking at the types of indirect taxes. So first of all, we have an ad valorem tax. ठीक है. इसका definition क्या है? This tax is based on the value of a product. ठीक है. The name itself is self-explanatory यहाँ पे. Ad valorem. Valorem मतलब value से link कर सकते हैं इसको, है ना. So this tax will be based upon the value of a product. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज देयर इज अ 35% का कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड ऑरेंज जूस. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स अगर 1000 रुपीज़ का हमने जूस मंगवाया, सो हाउ मच विल बी द टैक्स, इट विल बी 35% ऑफ 1000 रुपीज़, दैट बिकम्स 350 रुपीज़. ठीक है. सो दिस इज बीइंग levied ऑन द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है. एंड इट इज़ ईजियर टू एडमिनिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट स्पेसिफिक टैक्स. सो टैक्स विच इज़ levied on the quantity of a product. ठीक है. So there are two types. One which is levied on the value, the other one will be levied on the quantity. So quantity में अगर levi कर रहे हैं तो कैसे रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 260 रुपीज़ का अगर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है पर 1000 cigarettes. ठीक है. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे इट इज़ बीइंग levied ऑन दीज मैनी अमाउंट ऑफ cigarettes. ठीक है. सो दिस इज अ क्वांटिटी विच इज़ बीइंग levied. ठीक है. सो प्रो क्या है इसका, दिस इज इफेक्टिव इन डिस्करेजिंग हार्मफुल कंजम्पशन as the burden is easily passed on to the consumer. And cons है कि it is quite difficult to administer and it is prone to inspector raj and litigation. So बस ये याद रखना कि it is good for discouraging harmful consumption because this will be higher in amount. ठीक है. तो वो याद रखिए आप. एड वैलोरम टैक्स मतलब वैल्यू से रिलेटेड है, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. एंड स्पेसिफिक टैक्स विल बी quantity specific. ठीक है. It will depend upon the quantity. Next we will be looking at the burden of indirect tax, forward versus backward shifting. So scenario क्या है, जैसे if the GST on a particular ice cream increases, ये एग्जाम्पल दिया है. तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग के केस में क्या होगा, द सेलर विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम एंड दस द burden of the tax increase will be passed on to the consumer. ठीक है. नेक्स्ट बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या होगा, द सेलर विल बी मेंटेनिंग द ओरिजिनल प्राइस, हाउएवर ही रिड्यूसेस द कॉस्ट्स. एग्जाम्पल, वर्कर की सैलरी कम कर दिया अपने शॉप में जो भी वर्कर्स हैं उनका, है ना. सो दैट वे ही विल बी एबल टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन्स. So now the burden of the tax is passed on to the workers. So this is known as the backward shifting. ठीक है. So the shifting method will be dependent upon the supply and demand of the product. For example, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, so you cannot afford to increase the prices. So that in that case backward shifting will be done. ठीक है. Similarly अगर कोई essential goods हैं, they'll probably उनका डिमांड इवन दो इट इज़ लिमिट मतलब
ज़्यादा भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, बट देयर आई एम सॉरी सप्लाई उनका जो डिमांड रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एसेंशियल गुड्स है, इसका डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, इन इलास्टिक डिमांड है, बिकॉज essential good है, no matter what people will purchase medicines। ठीक है, so in that case they can go for forward shifting, मतलब the amount of the burden of the tax increase can be passed on to the consumer because the consumer has no choice, है ना। यहाँ देखो, because consumer has no choice but to buy that medicine। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, burden of tax increase will be passed on to the customer in case of forward shifting। So as the name suggests forward, मतलब आगे कंज्यूमर को लगा देंगे, और अगर वर्कर्स को लगा रहे हैं burden then that will be known as backward shifting। So ठीक है, this is quite easy to understand। तो अगर if taxes are increased then what will be the shopkeeper doing? He can do two things। Shopkeeper, he can either pass the burden to consumer, ये कंज्यूमर है, उसको बर्डन पास ऑन कर देंगे, और he could pass the burden on to the worker। ठीक है, so these are the two things which can be done, and based upon this the names are forward shifting and backward shifting, है ना। ये वाला forward रहेगा और this one will be backward। So now next देख लेते हैं merits and demerits of indirect taxes। So first of all merits में क्या है, it is convenient to collect, है ना। The traders will act as unpaid trade tax collectors, thus making tax collection quite easy। ठीक है, wider based रहता है इसका, because it will be covering everyone such as GST on biscuits etc। Then it is quite elastic because small increase will generate large revenue because everyone is getting affected। ठीक है, however this is less elastic than direct taxes। ठीक है, so this is an important statement कि direct taxes, I'm sorry, indirect taxes are quite elastic, however direct taxes are considered to be more elastic। Next, it can discourage harmful consumption। For example, they can impose higher taxes on alcohol, cigarettes, etc. in order to reduce consumption। Next, demerits क्या है? There is a lot of scope for corruption and tax evasion because they have a very high scope and it is again regressive। जैसे यहाँ पे कहाँ पे होता है, नॉर्मल बिस्किट वगैरह में तो नहीं करते हैं करप्शन, है ना। दिस हैपन्स प्राइमरली इन अल्कोहल, लिकर, इन सब चीज़ों में देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन विच हैपन्स। ठीक है, टैक्स इवेजन, करप्शन, ऑल ऑफ दैट हैपन्स इन दिस केस। नेक्स्ट रिग्रेसिव है, बोथ द रिच एंड द पुअर विल बी पेइंग दिस सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, सो देयर विल बी अ हायर बर्डन ऑन द पुअर, मतलब पैसे वो लोग सेम ही पे कर रहे हैं बट प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम विल बी हायर इन द केस ऑफ पुअर एज कम्पेयर टू द रिच। ठीक है, वो अगर 50 रुपये टैक्स दे रहा है पुअर पर्सन, दैट विल बी अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम एज कम्पेयर टू रिच। रिच के लिए वो बिल्कुल पीनट्स, इट विल बी पीनट्स। ठीक है, so that is why it is considered to be a regressive tax। Next we have hidden tax। So this is a kind of indirect taxes or kind of hidden taxes। So that is because the consumer will not feel the tax impact क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनको लगा कि बिस्किट का प्राइस है 50 रुपये, है ना। बट देर इज अ सर्टन टैक्स इंक्लूडेड इन इट एज वेल, सो इट प्रोड्यूसेस सिविक अवेयरनेस कि कितना टैक्स दिया उन्होंने। उनको लगता है नहीं मैं बिस्किट बाय करके आया हूँ, है ना।
but they have actually paid indirect taxes as well. Next है uncertainty in revenue. So the increased prices may reduce the demand, thus making government revenue unpredictable. Without input credit, taxes will accumulate and thus result into a cascading effect. ठीक है. Hmm. Now we'll be looking at, देखो ये जो cascading effect लग रहा है, we'll be studying this properly when we study goods and services tax और वो सब जब पढ़ेंगे then we'll properly look at this. बस इसका ये मतलब है कि for example there is generally a supply chain involved है ना, when it comes to selling stuff. supply chain में ऐसे दो तीन लोग रहेंगे है ना, दो तीन लोग पे अलग अलग हर पे there will be a tax burden involved है ना. Now these people will have some tax. अगर ये खुद ही टैक्स भरते रहे देन जो कंज्यूमर है उस पे देयर विल बी अ वेरी हाई बर्डन. इन सब का टैक्स इट विल बी द कंज्यूमर विल बी पेइंग. ठीक है, और वो ऐसे परसेंटेज में ऐड होता रहेगा एंड दैट विल बी बिकम क्वाइट हाई. तो कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं. However, since the GST regime has come into place, क्या होता है, these persons who are the middlemen, they receive input tax credits. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स मिलता रहता है इनको. सो द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इज रिमूव्ड. ठीक है, एंड द लास्ट पर्सन मतलब द कंज्यूमर विल नॉट बी सो अनहैप्पी. ठीक है, सो वील रीड अबाउट दिस प्रॉपरली लेटर ऑन. नेक्स्ट है पिगोवियन टैक्स, देख लेते हैं. सो पिगोवियन टैक्स का मीनिंग क्या है. इट इज़ एन देखो अ साइड इफेक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी सीमेंट कंपनी है ना, तो सीमेंट कंपनी के रिलेटेड पार्टीज क्या रहेंगे, हु विल बी डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द सीमेंट कंपनी. इट विल बी द वर्कर्स, कंज्यूमर्स, ये सब लोग है ना. However, there will be certain unrelated parties as well. इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है क्योंकि सीमेंट कंपनी की वजह से है ना. सो दीज पीपल विल बी पेइंग एन अ हिडन प्राइस. ठीक है, क्योंकि उनका इवन दो द सीमेंट कंपनी से उनको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है बट देयर इज़ अ लॉस इन्वॉल्व है ना, इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, सो दे विल बी सफरिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन. ठीक है, in order to acknowledge this, a Pigovian tax was um, it has been proposed by many thinkers and scholars. ठीक है, तो उसी को पिगोविन टैक्स बोलते हैं. ठीक है, सो अभी देख लेते हैं कस्टम ड्यूटी एंड बजट नॉर्मल पैटर्न्स. सो द कस्टम ड्यूटी is generally levied under the Customs Act of 1962 ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये पता होगा आपको. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर इज द एक्ट का ईयर. ठीक है, 1962. सो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, कस्टम ड्यूटी. देखो इंडिया सिंस द बिगिनिंग हैज़ बीन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम चाइना. ठीक है, और चाइना का इंडो चाइना वॉर कब हुआ था, 1961 है ना, ये आपको याद होगा. सो ट्राई टू लिंक इट विद दैट कि आफ्टर द इंडो चाइना वॉर what happened, India started imposing custom duties on imports and exports of goods. बस ऐसे started तो नहीं है, मतलब प्रॉपर एक्ट आ गया उसके लिए. ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर इट है ना. सो 1961 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1962 में कस्टम्स एक्ट
of 1962 came into being. ठीक है, so that way you'll be able to remember this properly. Next देख लेते हैं, हाँ, टाइप ऑफ गुड, कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स क्या है, रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनमें द custom duty on imports will be lower in order to support manufacturing. ठीक है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू. फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर बनाने का, वील लुक एट पेपर. ठीक है, तो पेपर बनाने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर, द रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड इज पेपर पल्प, है ना. अभी जो पेपर का पल्प है वो इन केस आई हैव, मतलब थोड़ा तो इंडिया से खुद का ही मिल जाएगा. सो just assume that I am importing paper pulp from other countries as well. ठीक है, तो मैं इसका जो import duty है, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, दे विल बी कीपिंग द import duty लो, import duty कम रखेगा, ताकि दिस पेपर पल्प इज ब्रॉट इन टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. और अगर वो इसके साथ में दे आर ऑल्सो what are they are also importing पेपर डायरेक्टली, पूरा बना हुआ पेपर. ठीक है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा रखेंगे वो लोग, क्योंकि व्हाट डू दे वांट टू प्रमोट, दे वांट टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ठीक है, तो बेसिक इस चीज़ का पूरा क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द कोर आइडिया बिहाइंड दिस इंटायर थिंग, इम्पोर्टिंग, आई एम सॉरी, प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ठीक है, तो जो फिनिश गुड रहेगा उस पर दे विल बी चरिंग, हाँ, दे विल बी इम्पोजिंग अ हायर इम्पोर्ट ड्यूटी एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल्स, ताकि रॉ मटेरियल्स थोड़ा सस्ता में आ जाए इंडिया में एंड दे मैन्युफैक्चर इट इन इंडिया विद इन इंडिया इटसेल्फ. और फिनिश गुड महंगा है ताकि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल आर एबल टू बाय इट, और मतलब इंसेंटिवाइज करेगा कि बाहर का फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ना बाय करें. ठीक है, तो दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस इंटायर थिंग, प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ठीक है, मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए. सो कस्टम ड्यूटी का दिस इज नोन एज द नॉर्मल पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स विल बी हैविंग लोअर कस्टम ड्यूटीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रॉ मटेरियल शॉर्टेज. मतलब कि क्या होगा, रॉ मटेरियल को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, देन दे विल बी हैविंग हायर एक्सपोर्ट ड्यूटी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये रॉ मटेरियल इंडिया में ही रहे और यहाँ इंडिया में ही यूज़ हो जाए मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, और वहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल विद इन इंडिया. ठीक है, सिमिलरली फिनिश गुड्स जो है उस पर import duty will be higher in order to disincentivize the use of imported finished goods. ठीक है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दिस इज डन. ठीक है, सिमिलरली कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स कितना रहेगा, दिस विल बी लोअर इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन द केस ऑफ शॉर्टेज और इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्या करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स है दैट विल बी रिड्यूस्ड, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है. तो क्या क्या व्हाट विल बी बेनिफिशियल इफ रॉ मटेरियल कम्स इन टू इंडिया एट अ लोअर प्राइस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद इन इंडिया. सिमिलरली कस्टम ड्यूटीज और ऑन एक्सपोर्ट्स क्या कर देंगे, इट विल इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डोमेस्टिक आउटफ्लो, क्योंकि पहले ही इन्फ्लेशन की वजह से देयर विल बी अ सप्लाई शॉर्टेज. सप्लाई शॉर्टेज तो नहीं हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग डिसप्रोपोर्शनेटली एंड सप्लाई इज लो, एंड दैट इज़ वाई देर इज़ इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ते जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन व्हाट इज़ ऑल्सो डन, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा सकते हैं. सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे सवाल आ सकता है. ठीक है, स्टेटमेंट्स में वन ऑफ द स्टेटमेंट्स विच माइट बी गिवन के हाउ डू इम्पैक्ट, हाउ डज द गवर्नमेंट combat this thing, inflation. तो उसके लिए one of the options given could be this thing
कि रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग द कस्टम्स ड्यूटी। सो हमें लगेगा कि यार कस्टम ड्यूटीज़ का क्या मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ना, बट नहीं, दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपरली। ठीक है, सो दिस वन इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन custom duties on exports will be increased. ठीक है, now we look at customs duties on imported lab chemicals. ये किसी काम का नहीं है, this is an old news है ना। ये बस ऐसे दिया है कि initially it used to be around 10% और अभी 150% है। this is not important. next देख लेते हैं indirect taxes, petrol and diesel, high prices. So union taxes include एक तो बेसिक एक्साइज होता है उसमें, देन स्पेशल एडिशनल एक्साइज। एक्साइज होता है मैन्युफैक्चरिंग पे जो लगाते हैं ना एक्साइज ड्यूटी, दैट इज़ एक्साइज। ठीक है, सो यूनियन टैक्सेस इंक्लूड बेसिक एक्साइज, स्पेशल एडिशनल एक्साइज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक है, और स्टेट टैक्सेस में क्या आएगा, स्टेट वैट आएगा। ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो टैक्स रेट्स हैं डू नॉट बॉदर रिमेंबरिंग देम। तो जैसे पहले कितना था, यू शुड जस्ट हैव अ जनरल आइडिया। तो जैसे टैक्स रेट्स मिड 2021 में कितने थे, पेट्रोल के अराउंड 135% टैक्स लगता था ऑन द बेस प्राइस, वेयर एज डीजल में 116% टैक्स ऑन द बेस प्राइस। ठीक है, तो जो भी बेस प्राइस चल रही है मार्केट में ड्यू टू द इंटरनेशनल चेंजेस जो भी चल रहा है, उस पर 135% यूज टू बी इम्पोज्ड। ठीक है, सो जीएसटी का इम्पैक्ट क्या हुआ, द करंट टैक्सेस वर replaced with the highest GST slab of 28%, thus resulting in a significant revenue loss for both the union and the state government। मतलब अराउंड 4 लाख करोड़ का, क्योंकि पहले कितना 135% के अराउंड लग रहा था टैक्सेस। ठीक है, और नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यू टू द जीएसटी थिंग, अराउंड 28% इज ओनली बीइंग लिवाइड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा टैक्स कट आ रहा था, दैट इज़ वन रीज़न वाई जीएसटी एज सच इस पर नहीं अप्लाई करा। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल पे। दस चीप पेट्रोल एंड डीजल आर अनलाइकली अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट सब्सटैंशियल रेवेन्यू कट्स। सो मोरोवर जो COVID-19 पैंडमिक था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बैक देन, so direct tax collection was also reduced because people were earning less, है ना। so that is why government did not make any changes to the petrol and diesel का taxing। ठीक है, so that is the main reason। अगर GST का slab लगा देते तो it would have become only 28%, whereas the taxes right now are in the range of this thing 110 plus। ठीक है, so ये जैसे यहाँ पे दिया है कि दैट इज़ द रीज़न वाई इंडियन फ्यूल प्राइसेस रिमेन हाई यूजुअली। सो गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफन काउंटरैक्ट द इंटरनेशनल प्राइस ड्रॉप्स। ठीक है, दस कीपिंग द फ्यूल एक्सपेंसिव। की रीज़न क्या है, वो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट दे वांट टू अर्न मनी, मतलब देयर शुड बी सम avenue for earning money for the government, and this is one which they look for। ठीक है, सो यही आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वाई आर दे हाई, बिकॉज टैक्स रेट्स विच आर बीइंग लिवाइड ऑन द फ्यूल प्राइसेस आर एक्सेप्शनली हाई। टैक्स रेट में क्या क्या आ जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्यूल, सो यू हैव द बेसिक एक्साइज, स्पेशल एडिशनल एक्साइज, एंड देन दो टाइप के सेस हैं, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है और एक है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, बेसिक एक्साइज और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ऐसे लर्न हो जाएगा। देन रोड और एग्रीकल्चर को कैसे आप लर्न करोगे, देखो रोड में पेट्रोल डीजल इज़ यूज प्राइमरली, है ना, तो वो वैसे लर्न कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह वैसे करके आप लिंक करके लर्न कर लो। ठीक है, so these four are the taxes which are being imposed, apart from that state VAT is also being imposed on it। ठीक है, तो GST का even if they would have put the highest it under the highest slab, the governments would have had to take a very high rate cut, that is why they have avoided doing so।
ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट स्पेशल एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नॉट शेयर्ड विद द स्टेट बाय द यूनियन. तो वही दिया है कि जो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि देयर इज़ अ बेसिक एक्साइज विच इज़ बीइंग लीवाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ एन एडिशनल, मतलब यहाँ पे बस स्पेशल एडिशनल दिया है, बट आई सपोज देयर इज एडिशनल एज वेल एज स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी. बोथ ऑफ दोज आर नॉट बीइंग शेयर्ड विद द स्टेट. ठीक है. जो फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बनाता है ना अपना, जैसे अभी 41% का है कि 41% शुड गो टू द स्टेट्स, इन दैट these two are not being added. ठीक है. ओनली द बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज बीइंग शेयर्ड विद द स्टेट्स, नॉट द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या, हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं. additional differential excise duty on unblended petrol. So if you might be knowing 20% ethanol blending चल रही है हमारे इंडिया में, है ना, इन पेट्रोल. ठीक है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो उसके लिए देर हैज़ बीन अ टैक्स इंसेंटिव विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड. सो जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसमें कि एक एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी है, वो 0% लगती है. वेर एज अनब्लेंडेड पेट्रोल में इट इज़ ₹2 पर लीटर. ठीक है. सो द मेन पर्पस इज़ टू इंसेंटिवाइज रिफाइनरीज टू मीट इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स. तो अभी टोटल वो कितना हो गया, एक तो बेसिक एक्साइज हो गया, स्पेशल एडिशनल एक्साइज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, AIDC. ठीक है. ये सब तो सेम है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज दिस एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी विच इज़ बीइंग अप्लाइड, विच इज़ प्राइमरली फॉर प्रोमोटिंग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट विंडफॉल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल और ATF फ्यूल. सो देखो क्या होगा, अभी द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रिवेंट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड ATF. दैट इज़ वाई अ विंडफॉल टैक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल और ATF. ATF मीन्स फ्यूल विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो उस पर देयर इज़ अ विंडफॉल टैक्स विच इज़ बीइंग अप्लाइड. नेक्स्ट है पेट्रोल डीजल डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम एंड ऑयल बॉन्ड रीपेमेंट. सो डायनामिक प्राइसेस क्या होता है कि समथिंग विच कीप्स चेंजिंग, है ना. सो डायनामिक प्राइसिंग विल प्राइमरली डिपेंड अपॉन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस. ठीक है. सो इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस देयर विल बी अ इंक्रीज इन द डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस एज वेल. ठीक है. तो ये हमारे इंडिया में नहीं होता है डायनामिक प्राइसिंग. इंस्टेड वी हैव अ वेरी थिक बफर. ठीक है. तो ये जो नॉर्मल प्राइस है, ग्लोबल ऑयल प्राइस, ये रहेगी. वेर एज हमारा इंडियन का प्राइस थोड़ा काफ़ी ऊपर रहेगा ड्यू टू द टैक्सेस विच आर बीइंग इम्पोज. कितना था, अराउंड 135%, वेरी हाई टैक्सेस. ठीक है. सो गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफन काउंटर एक्ट द इंटरनेशनल प्राइस ड्रॉप्स. और की रीज़न क्या है, वो एक गवर्नमेंट को अपने पुराने ओल्ड ऑयल बॉन्ड्स का रीपेमेंट करना है, एंड दे ऑल्सो नीड मनी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. दैट इज़ द रीज़न. ठीक है. सो डायनामिक ऑयल प्राइसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट है मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट मिनरल्स. मिनरल्स में रॉयल्टी लगता है, टैक्सेस नहीं लगता. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम द रॉयल्टी द स्टेट्स कैन ऑल्सो डिमांड अ सेपरेट टैक्स ऑन मिनरल्स. ठीक है. तो जैसे रॉयल्टी क्या होता है कि देखो, मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी मानते हैं मिनरल्स को. दैट इज़ वाई from anything which is being excavated, the private entity who excavates it will be required to pay certain royalty to the government, because government property है वो essentially जो हमने mineral mine करा है. ठीक है. So royalty is basically a contractual payment for mineral rights. It is not a tax. ठीक है. contractual payment है in order to have right to excavate that mineral. Now state tax authority क्या है, जैसे यहाँ पे this is an example which is being given
इंडियन सीमेंट्स का दिया, इंडिया सीमेंट्स का दिया है, उनका पूरा लीज सिचुएशन दिखाई हुई है। दीज आर मृणाल सर्स नोट्स, तो उन्होंने जैसा दिया है वो यहाँ पे है ना। तो स्टेट टैक्स अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु है, इट कैन टैक्स माइंस एंड मिनरल राइट्स फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो एक टैक्स रिलीफ दी हुई थी पहले कि देयर विल बी नो इंटरेस्ट और पेनल्टीज ऑन टैक्सेस बिफोर फ्रॉम दीज डेट्स 2005 टू 2024। और उसके बाद के जो है पेंडिंग टैक्सेस है इतने सारे ईयर्स के, दे हैव टू बी पेड इन 12 ईयर इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इंटायर एग्जाम्पल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वॉट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इज़ दैट मिनरल्स पे एक रॉयल्टी भी लगती है। ठीक है, it is not taxes which are being collected on minerals, but it is rather the royalty, and over and above that the states can demand a separate tax as well. ठीक है, then urban local bodies का social solid waste management cess देख लेते हैं। So solid waste management cess is being levied by urban local bodies। ठीक है, so as the name suggests it is primarily for solid waste management। ठीक है, सो बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ द इम्पोजिंग दिस सेस इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। ठीक है, इसका टिपिकल रेट कितना होता है, इट इज़ अराउंड ₹30 to ₹50 पर मंथ, है ना, एंड इट इज़ कलेक्टेड अलॉन्ग साइड द प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में दिस इज़ बीइंग कलेक्टेड, एंड रेट इज़ फेयरली मतलब इट इज़ नॉट वेरी हाई। एंड ये आपको लर्न करना है द ईयर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कौन से ईयर में आया था, 2016 में आया था। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हाँ ठीक है ऐसे कर लो, सॉलिड वेस्ट है ना, तो सॉलिड का एस और ओ को कंबाइन करेंगे अगर हम, तो 6 टाइप कुछ बन जाता है ना, और जो एल है, एल विल एक्ट एज अ 1। ठीक है, तो इन दिस विल बिकम 16, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ये 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स केम इनटू बीइंग। Now we'll be looking at the cascading effects of indirect taxes. So the main reason why the GST has been introduced is that there is a cascading effect indirect taxes की वजह से, that and in order to prevent that from happening GST was introduced। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। So first of all, we'll just read the definition. The cascading effect occurs when the tax is levied on a product at multiple stages of production and distribution. ठीक है, without allowing businesses to claim back the tax paid of input on inputs. So this leads to tax being applied on tax, thus increasing the final price of the for the consumers. So for example, I've already explained this, but ये suppose सप्लाई चेन है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, सो देयर विल बी वेरियस इंटरमीडियरीज, शॉपकीपर्स, ये सब है ना, और ये सपोज ग्रीन वाला इज़ द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या होगा कि इनके पास में आया प्रोडक्ट का सम प्रोडक्ट इन सम फॉर्म, रॉ मटेरियल या कुछ भी, उस पर टैक्सेस लगा, यहाँ पे फिर थोड़ा सा बन के गया, उस पर भी टैक्सेस लगा, तो यहाँ पे जो टैक्स लगा उसके टैक्स के भी टैक्स लग गया, है ना, टैक्स ऑन टैक्स हो गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देर इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक पहुँचेगा देन बहुत ज़्यादा टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पर्सन विल हैव टू bear a huge burden। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई GST का सिस्टम वॉज ब्रॉट इन, wherein input credits are provided to various intermediaries। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं so that the problem of tax on tax can be reduced। ठीक है,
तो यही है यहाँ पे बोला है ना कि विदाउट अलाउइंग द बिजनेसेस टू क्लेम बैक द टैक्स पेड, ये वाला दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉर्टेड आउट नाउ। ठीक है, नाउ वी लुक एट द एग्जांपल। वही दिया है कि मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने समझाया, इट इज़ सिमिलर, सो यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर द जीएसटी सिस्टम, cascading effect is reduced because businesses can claim the input tax credit to offset tax paid on inputs, thus avoiding tax on tax problem. ठीक है, so under the GST system, the cascading effect will be reduced due to the input tax credit. Now we look at the timeline of reforms in indirect taxes. So first of all, from 1986 to 2004, मॉड वैट यूज टू बी अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद सेन वैट हो गया, फिर वैट। वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो पहले 86 से 2004 तक वी हैड मॉड वैट, और फिर इनकम टैक्स क्रेडिट ऑन यूनियंस टैक्सेस था ऑन दी एक्साइज पेड बाय बिजनेसमैन। ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन स्टेट्स टैक्सेस नहीं था। आई जस्ट राइट द फुल फॉर्म हियर। ITC stands for Input Tax Credit। ठीक है, तो पहले भी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज प्रोवाइडेड बट ओनली टू द एक्साइज पेड ऑन बिजनेसमैन, पेड बाय बिजनेसमैन। However, input tax credit on states taxes was not being provided. नेक्स्ट है सेनवैट, वो था 2004 से 2017 तक। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस किस चीज़ के लिए था? दिस वाज फॉर एक्साइज एज वेल एज सर्विस टैक्स। पहले ओनली एक्साइज के लिए था। ठीक है, एंड अगेन input tax credit on states taxes was not being provided. ठीक है, then we move to VAT, that is value added taxes. So this was from 2005 to 2017 again. This is an overlapping period. इसमें input, देखो जो ये वाला वैल्यू एडेड टैक्स है उसका द अथॉरिटी विल बी द स्टेट, द अथॉरिटी हु इज लीवाइंग द टैक्स विल बी द स्टेट। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? देयर विल बी नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन यूनियंस टैक्सेस बिकॉज यूनियन इज नॉट अप्लाइंग इट ऑल्सो, है ना, और स्टेट्स टैक्सेस में मिल रहा था। सो ऑन वैट पेड बाय बिजनेसमैन दे यूज टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख लो, देखो सेन वैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस। Central value added taxes, or MODVAT stands for modified value added taxes। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। क्या है इसमें? यहाँ पे सेन वैट में सेन को आप एस से भी, इज राइमिंग साउंड्स द सिमिलर, है ना। एस से सर्विस टैक्स, मतलब कि सेन वैट में सर्विस टैक्सेस वर आल्सो इंक्लूडेड, वेयर एज इन मॉड वैट देयर वाज ओनली एक्साइज। ठीक है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। नाउ वी हैव वैल्यू एडेड टैक्सेस, उसमें भी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट वैल्यू एडेड टैक्सेस इज levied by the state, whereas the other ones were being levied by the union। ठीक है, एंड ये बस इतना याद रखना है। देन यूनियन एंड स्टेट कंबाइंड जीएसटी, सो 2017 से आ गया है, एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन बोथ यूनियंस एज वेल एज स्टेट्स टैक्सेस। ठीक है, और दोनों ही अथॉरिटीज विल बी द वंस लीवाइंग इट। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द टाइमलाइन फॉर जीएसटी। So first of all, it was the Vijay Kelkar task force on FRBM who had recommended the introduction of GST back in 2004 itself। ठीक है, 2004 में कौन सी गवर्नमेंट आई थी? यूपीए। तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से ही दिस हैज़ बीन प्रपोज्ड।
नाउ इफ़ यू लुक एट द अर्लियर टाइमलाइन ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या हुआ था, 2004 तक तो मॉडबैट था, 2004 में देयर वाज सर्टेन चेंजेस एंड सेनवैट वाज ब्रॉट इन, है ना। और सिमिलरली वही उसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूड कर दिया था आईटीसी के लिए। तो 2004 में आफ्टर द विजय केलकर टास्क फोर्सेस रिकमेंडेशन सम चेंजेस वर ब्रॉट इन बट कंप्लीट जीएसटी वाज नॉट ब्रॉट। ठीक है, तो इससे आपको ये वाला ईयर भी याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी वी नीड टू रिमेंबर कि विजय केलकर टास्क फोर्स किसके लिए है। दिस वाज प्राइमरली फॉर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बट दे हैड ऑल्सो, यहाँ फुल फॉर्म लिख लेती हूँ, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट के लिए, FRPM। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे इसको। अ, देखो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव क्या है, टू इंश्योर फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस मतलब कि यू आर मेकिंग डिसेंट डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे आप कंपेयर कर लो, अगर हम बनाना लेने जाते हैं, बनाना, केला, है ना, केला या केलकर से आप इसको राइम वो कर लो, लिंक कर लो, केलकर। सो यू बार्गेन इन ऑर्डर टू इंश्योर फिस्कल प्रूडेंस ऑफ योर होम्स बजट। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस फिस्कल प्रूडेंस ऑफ योर ओन बजट। ठीक है, उसके लिए यू बार्गेन। ठीक है, तो केला से केलकर एंड उससे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट 2006, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनाउंस्ड जीएसटी लॉन्च बाय 2010 इन हिज बजट स्पीच। ठीक है, सो 2006 में ही हैड proposed दिस, तो 2 years after यूपीए had come into power। 2011 में the UPA government introduced the 105th amendment bill to implement GST, but it was lapsed due to the dissolution of 15th Lok Sabha. ठीक है, so amendment bill had come about, it was in limbo for a very long time and ultimately it did not get passed due to coalition politics, है ना, तो वहाँ पे no one supported this back then. So this is not as important, but जैसे 115 को आप 15 लोकसभा से आप लिंक कर सकते हैं कि तब 15 लोकसभा was in power, so they weren't able to pass the bill। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2014 से 2016 में द न्यू गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, introduced the 122nd constitutional amendment bill in 16th Lok Sabha। It had required a हाँ देखो, since this was something which was affecting the states as well, that is why they required a special majority with state ratification। नहीं, हाँ ये वही लिखा है यहाँ पे, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन। ठीक है, ये कब होता है, जब इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द अमेंडमेंट इज अफेक्टिंग द स्टेट्स एज वेल, तो उसमें हम लोग जाते हैं स्पेशल majority with state ratification। ठीक है, so this is important। Then in 2016 the bill got passed and it became 101st constitutional amendment act। so you need to remember कि नंबर क्या था अमेंडमेंट का। सो आई थिंक दैट दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, सबको पता है जीएसटी का 101 अमेंडमेंट एक्ट है ना। वैसे इसका इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लर्न द बिल नंबर एज वेल। देखो क्या हो रहेगा, GST 101, वन का टी से लिंक हो जाएगा, टी और वन सिमिलर दिखते हैं ना, सो यू कैन रिमेंबर दिस।
नाउ व्हेन इट कम्स टू 102nd, तो जो जी है वो ऐसे टू जैसे दिखता है ना, इन्वर्टेड टू जैसे, तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि 102nd वॉज दिस थिंग, जीएसटी अमेंडमेंट बिल। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द अमेंडमेंट एक्ट और उससे क्या क्या आर्टिकल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड आर्टिकल 246। अच्छा, ये इतने सारे आर्टिकल्स वर एडेड, अलॉन्ग विद दैट इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं आर्टिकल 246A। पहले ये सारे आर्टिकल नंबर्स देख लेते हैं। 246A, 269A, 270, देन 279A, 366 और बस इतना ही है। सो 246A में क्या हुआ था, द स्टेट्स कुड नाउ टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनियन exclusive the union government would exclusively tax interstate supply। तो IGST होता है ना, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके लिए द कोर अथॉरिटी वाज गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वही हो गया कि द स्टेट्स कुड नाउ टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, बट इंटरस्टेट जीएसटी के लिए वी हैड यूनियन गवर्नमेंट। तो हमें इसको लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड ऑल ऑफ देम एंड देन वील स्टार्ट लर्निंग, ट्राई टू वील स्टार्ट लर्निंग दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 269A में क्या, अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 269A में क्या है, द इंटरस्टेट जीएसटी विल बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एज डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। इतना दिया है इसमें, ठीक है, कि द IGST विल बी शेयर्ड बिटवीन द टू। फर्स्ट वाले में बस IGST कौन लीवाई कर रहा है वो दिया है। ये सेकेंड वाले में IGST हाउ विल इट बी शेयर्ड। ठीक है, देन वी हैव CGST। CGST में क्या है, द यूनियंस इनडायरेक्ट टैक्स विल बी शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एज डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये IGST शेयरिंग के बारे में है, ये CGST शेयरिंग के बारे में है ना। यहाँ पे हु इज द नोडल अथॉरिटी, द नोडल अथॉरिटी विल बी द GST काउंसिल। वेट अ सेकेंड, नोडल अथॉरिटी मतलब द पर्सन हुज, द अथॉरिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर determining the formula, है ना, that is the GST council, whereas in this case it will be the finance commission। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वी लर्न दिस अभी विद इन 2 minutes। नेक्स्ट है 279A। In this, the president will be appointing the GST council and it will be headed by the finance minister। तो यहाँ पे 279A deals with the GST council। ठीक है, इसके बाद I'll just write it down here। ये है GST council के बारे में। Then we have Article 366 which deals with alcoholic liquor for human consumption। हाँ, उसमें दिया alcoholic liquor is excluded from GST and the states will retain excise and VAT on alcohol। So why was this done? Because liquor से states receive a massive amount of tax। ठीक है, तो states क्या एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं उस पर और वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, उससे बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ देयर टैक्सेस, अ वेरी बिग प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लिकर पे जो टैक्स लगता है। ठीक है, सो इफ दे वुड हैव डन अवे विद दिस ऑल्सो अंडर द GST regime, then it would have been very difficult for the states to survive, मतलब to sustain। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसको दिस पोर्शन वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिकर के बारे में है, दैट इट इज़ नॉट अंडर GST। देन वी हैव GST, इसमें क्या दिया है GST इम्प्लीमेंटेशन में, द सप्लायर रिसीव्स ITC फॉर CGST एंड SGST पेड इन प्रीवियस स्टेजेस। ठीक है, तो ये बाद में लाया गया था, है ना, अपॉन इम्प्लीमेंटेशन। सो वी लुक एट हाउ टू लर्न दी आर्टिकल्स। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही लर्न कर लो कि देखो
आईजीएसटी है, फिर आईजीएसटी शेयरिंग का है, सीजीएसटी शेयरिंग का है, और जीएसटी काउंसिल और लिकर के बारे में है ना। Okay, so I've just made some changes to this. देखो क्या है यहाँ पे, जो 246A है उसमें हमने वी हैड रेड की IGST सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द वन हु विल बी तो ही विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द वन हु विल बी लीवाइंग इट, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास पावर्स रहेंगी टू लिवाई इट, और टू मतलब ज्यूरिसडिक्शन किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, सो देर इज समथिंग मोर इन द आर्टिकल 2246A, वो मैंने अभी यहाँ ऐड कर दिया है। देखो क्या है, जो इंट्रा स्टेट जीएसटी है, दैट इज द जीएसटी विद इन द स्टेट दैट इज बीइंग डिवाइड बाय द मतलब डिवाइड बाय द बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट, प्लस जूरिस्डिक्शन किसके पास है इसके ऊपर कुछ भी लॉ या चेंज करने की, इट इज़ विद द लेजिस्लेचर एज वेल एज द पार्लियामेंट, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास में दे हैव द powers to legislate on intra-state GST. Now, when it comes to interstate GST, only the parliament has powers to do so. ठीक है, नाउ वी लर्न 246A। तो यहाँ पे क्या दिया है, पावर्स के बारे में बात हुई है ना, कि किसके पास पावर है लेजिस्लेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कॉन्करेंट जूरिसडिक्शन के बारे में दिया है कि इंट्रा में दोनों के पास है, वेयर एज पार्लियामेंट इंटर जीएसटी में ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर। ठीक है, तो पावर की बात हुई है, तो यहाँ पे देखो 246, तो मतलब कितना हुआ, 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 × 3 कितना हो जाता है 6, देयरफॉर मल्टीपल्स हैं ये, है ना, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो पावर से इसको लिंक कर लो कि पावर ऑल्सो इंक्रीज इन मल्टीपल्स, तो एक बार कोई पर्सन पावरफुल होना शुरू होता है तो डिस्प्रपोर्शनेटली ही और शी बिकम्स पावरफुल। ठीक है, वैसे लर्न करने के लिए मैंने बताया है कि 246 मतलब 2 फिर उसका मल्टीपल 2 4 और 6 है ना, सो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो पावर इंक्रीजेज इन मल्टीपल्स, इसको ऐसे करके लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट 269, ये किसके लिए था, IGST जो होता है इंटरस्टेट जीएसटी, उसको शेयर कैसे करना है, एंड दैट फॉर्मूला विल बी डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, 69 देखो 69 269 का 69 जो है वो इट लुक्स लाइक कोई स्फीयर को काटा हुआ है, ये देखो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, है ना, तो 69 मतलब स्फीयर को काटा हुआ है, अगर मतलब शेयर कर दिया स्फीयर को। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर पावर IGST में टैक्स विल बी शेयर्ड एंड द नोडल एजेंसी फॉर डिटरमाइनिंग द फॉर्मूला विल बी द GST काउंसिल। ठीक है, देन वी हैव 270, उसी के नेक्स्ट 269 के नेक्स्ट वाला अगेन विल बी रिगार्डिंग शेयरिंग, बट दिस विल बी रिगार्डिंग CGST शेयरिंग। तो CGST शेयरिंग का फॉर्मूला कौन देगा, फाइनेंस कमीशन। वाई इज इट सो, बिकॉज जो सेंट्रल GST है दैट इज ऑलरेडी गॉन टू द यूनियन। ठीक है, अभी जो यूनियन के पास पूरा टैक्स का इट हैज़ द फंड्स कलेक्टेड एट वन प्लेस, दोज फंड्स विल बी नाउ सेग्रीगेटेड। ठीक है, और ये जो टैक्स रेवेन्यू पूरा सेग्रीगेट करने का काम किसका होता है, फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, सो दैट इज वाई द फाइनेंस कमीशन विल बी डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच। ठीक है, सो 269 आपको याद है, शेयर को हमने शेयर कर दिया था, देन उसी का नेक्स्ट वाला इज ऑल्सो रिगार्डिंग शेयरिंग ओनली। देन वी लुक एट 279, 279 क्या है, GST काउंसिल के बारे में है, तो इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 2 + 7 कितना होता है 9, और यहाँ पहले से भी एक 9 है, तो 9 को हम नया नया से लिंक कर सकते हैं 9 को, है ना, सिमिलर साउंडिंग है। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा कि नया बॉडी बनाई गई, नया ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी बनाया गया, एंड दैट वाज नोन एज द GST काउंसिल। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है इधर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो न्यू बॉडी 279A में, तो नया से यू कैन लिंक इट। देन वी हैव लिकर 366, तो वो हमने कर सकते हैं, देखो
liquor was an exception and no GST is applicable on it. So 366 को वैसे कर लो, we have 365 days in an year है ना, but in leap years we have 366 days. ठीक है, तो लीप ईयर क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है. Leap year is an exception. Similarly, liquor is also an exception when it comes to GST. ठीक है, तो that is how you can remember this. ठीक है, next we will be looking at GST Council and its composition. So first of all देखते हैं, देर आर टू यूनियन रिप्रेजेंटेटिव. जो कॉम्पोजिशन है उसमें देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल दो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे. वी हैव द फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरमैन एंड देर विल बी वन मोर मिनिस्टर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी 31 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स. So one minister from each union territory will be present. Each state or union territory will be present. ठीक है, और एक सेकेंड. तो हमारे से कितना है, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट यहाँ पे ओनली 31 रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन ब्रॉट. सो व्हाई इज इट सो, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो 28 स्टेट्स के तो सारों के रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, और यहाँ में से 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो यूटीज विद लेजिस्लेचर हैं, आई फील दैट ओनली दोज will be represented in the GST council. See देखो 8 में से एक तो JNK हो जाएगा हमारे पास. They are the ones who have a UT. Then we have Delhi and then also Puducherry. Okay, so these are three UTs with legislature. So maybe only these three are being represented in the GST council. That is why there are only 31 representatives. ठीक है, तो 28 plus 29 30 31. ठीक है, now one of the state representatives will be elected as a vice chairman. तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड वन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव विल बी द वाइस चेयरमैन. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द वोटिंग पावर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, देखो यूनियन के पास में इट हैज़ नियरली 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स. ठीक है, वेर एज द स्टेट्स विल बी हैविंग 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स. ठीक है, दीज टू स्टेटमेंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि यूनियन के पास में कितना, ओनली 1/3 पावर है एंड स्टेट्स विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ पावर. ठीक है, डू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. ऐसे हाफ हाफ ने किया है, रादर 1/3 एंड 2/3 में डिवाइडेड है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बारे में देख लेते हैं. द प्रपोजल्स रिक्वायर अ 3/4 majority वोट टू पास. ठीक है, और द कोरम फॉर एनी काउंसिल मीटिंग विल बी अराउंड 50%. मतलब आधे लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी मीटिंग में. प्लस प्रपोजल्स रिक्वायर अ 3/4 majority. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, रिवाइज दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी हैव जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस. ठीक है, ये बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. देखो सबसे पहले the list of indirect taxes, cess, surcharges of union states can be being subsumed under the GST regime. ये तो हमको पता ही है ना. उसके अलावा एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ऐसे करते हैं. ठीक है, so these are being subsumed under the GST regime. Then it decides the date from which crude oil, petrol, diesel, aviation turbine fuel and natural gas will be put under the GST regime. ठीक है, तो वही है बस, द डेट विल बी डिटरमाइंड वेर इन दीज थिंग्स विल बी ब्रॉट अंडर द GST regime एज वेल. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पेट्रोल और डीजल को भी नहीं लाए हैं बिकॉज स्टेट इम्पोजेज अ वेरी हाई टैक्स ऑन दिस एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस. मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फॉर देयर फंक्शनिंग. ठीक है, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई दे हैव नॉट बीन ब्रॉट. ठीक है, एंड इवन लिकर हैज़ नॉट बीन ब्रॉट. बट ऐसा है कि जो क्रूड ऑयल वगैरह हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दे विल बी brought under the GST, but the date has not yet been decided, so it will be the GST council who will be deciding it. ठीक है, so this is very important, you need to remember that who will be deciding the date. It is the GST council which will determine कि when will these
products being be brought in under जीएसटी. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने का. ठीक है. नेक्स्ट है डिसाइड द स्टैंडर्ड रेट्स एंड स्पेशल रेट्स फॉर जीएसटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी. ये हमको पता ही है, रेट्स डिसाइड करता है. आईजीएसटी सिस्टम के बारे में कुछ भी बनाने का हो, एनी पॉलिसी दैट इज ऑल्सो मेड बाय जीएसटी काउंसिल. नॉर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ये सारे जो भी एडम काम है ना जीएसटी से रिलेटेड, ऑल ऑफ दैट विल बी डन बाय द जीएसटी काउंसिल. देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगेन उनका ही काम है. कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस इन स्विचिंग फ्रॉम वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्सेस, टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. ठीक है, सो इवन अदर स्टेट्स विल बी रिसीविंग कॉम्पनसेशन फॉर द सेम. That is also being decided by GST. फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगेगा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मे बी दे विल गो टू सम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सिंस दे हैव द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, है ना. बट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी गोइंग टू द जीएसटी काउंसिल इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, दिस पॉइंट कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी दे विल फर्स्ट गो टू द जीएसटी काउंसिल. देन जीएसटी काउंसिल का जो भी डिसीजन होता है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स. ठीक है. In 2022, the Supreme Court had observed that GST Council decisions are not binding on the states, and that is why there's a lot of challenges created, because जो भी सेंटर पे गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स में अगर कहीं पे भी ऐसा है कि दूसरी दूसरी गवर्नमेंट है, देन देर इज सम फ्रिक्शन विच डेवलप्स. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, दे हैव अ टेंडेंसी टू नॉट कंप्लाई विद द जीएसटी काउंसिल डिसीजंस. ठीक है, सो बस ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट जीएसटी काउंसिल्स के जो डिसीजंस हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट. ठीक है. नाउ वी विल बी लुकिंग एट इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का, है ना. तो इसमें क्या होगा. सो इंटर स्टेट सप्लाई है, जैसे विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेट, सॉरी इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हो रही है कहीं पे भी. इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस आपको पता होगा. इंटर स्टेट इज बिटवीन टू स्टेट्स, वेर एज इंट्रा स्टेट इज विद इन वन स्टेट. ओके, सो वही यहाँ पे वही दिया है, ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स. तो टैक्सेस क्या एप्लीकेबल है इंट्रा स्टेट में. इंट्रा स्टेट में क्या होगा, एक तो CGST विल बी लिवाइड बाय द यूनियन, स्टेट विल बी लिवाइंग द स्टेट GST. ठीक है, और अगर इफ इट इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, देन UTGST बोलते हैं उसको. ठीक है, सो इट विल बी आइदर CGST प्लस आइदर ऑफ दीज टू, SGST और UTGST. ठीक है, दिस इज what applies to intrastate supply. Now when you go to interstate supply, the IGST comes into play. ठीक है, so the union will be levying IGST, that is integrated या interstate भी बोलते हैं, integrated GST बोलते हैं. ठीक है, तो IGST is equal to CGST plus SGST or UTGST of the destination. Now the CGST portion will be going to the union and the other portion will be going to the states. ठीक है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई के लिए है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी. सो फॉर हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ठीक है, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. दैट इज द टैक्स विल बी levied where the goods and services are being consumed, not where they'll be produced. So there had been a very big controversy when GST was introduced कि जो सारे प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, जिनके पास सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज यहाँ पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा है. जैसे कि अगर कोई भी स्टेट है, उन्होंने सामान बनाया, है ना, यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया. मैन्युफैक्चरिंग होके दिस वाज टेकन टू सम अदर स्टेट, और वहाँ पे जाके कंज्यूमर्स आर बाइंग दैट स्टफ. ठीक है, ये दूसरा स्टेट है, तो सारा टैक्स यहाँ को मिल जाएगा इस वाले स्टेट को, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ठीक है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस, and there were certain compensations which were made to these states as well.
तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन सप्लाई। तो क्या है, जीएसटी अप्लाइज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इट विल बी अप्लाइंग टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है। सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल मूव टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अर्लियर वी हैड रेड कि क्या होता है, यूजुअली जो इनपुट्स हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उन पे कम टैक्स लगाया जाता है। रॉ मटेरियल्स पे देयर इज लोअर टैक्स and the finished goods will be having higher tax. ठीक है। However, what has happened is in certain cases an inverted duty structure has arisen, वहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। When the tax on the output or the final product are lower than the taxes on the inputs, ठीक है, that is known as an inverted duty structure। ठीक है। सो thus it has created an inverse accumulation of input tax credit। ठीक है। सो द गवर्नमेंट बस दस फंड द मस्ट देन रिफंड जीएसटी टू द बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग इनकन्वीनियंस। हुआ क्या कि इनको ये इसी का उल्टी चीज़ हो चुकी है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। तो रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वेयर एज फिनिश्ड गुड पे कम टैक्स लग रहा है ना। सो द बिजनेसमैन जिनको टैक्स पे करना पड़ा था और इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम आया था, देयर विल बी एन इनवर्स accumulation ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। सो सम स्टेप्स वर टेकन टू रेमेडी दैट एज वेल। बस इसमें से ओनली थिंग विच यू शुड बी नोइंग इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब कि रॉ मटेरियल पे ज़्यादा लग रहा है टैक्स एज कम्पेयर टू द फिनिश्ड गुड। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट exempt versus zero rated goods and service taxes। सो इन दोनों में डिफरेंस का हम लोगों को पता करना है। देखो इसमें क्या है, एग्जेम्प्टेड और ज़ीरो रेटेड में डिफरेंस हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ज़ीरो रेटेड मतलब 0% GST इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है। एंड द जो मिडिल मैन रहते हैं, इंटरमीडियरीज रहते हैं, दे कैन क्लेम एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ीरो रेटेड मत में the GST has a percentage and the percentage is 0%, and the intermediaries can claim a ITC। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड इट अलाउज द बिजनेसेस टू रिकवर द इनपुट टैक्सेस। नाउ जो निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि इट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड। ज़ीरो रेटेड में मतलब अभी ज़ीरो रेटेड है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कोई जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स होती हैं रेगुलरली, दे माइट चेंज इट, है ना। देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। जो एग्जेम्प्ट है मतलब कि एग्जेम्प्ट है, वो उस पर लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि 0% लगा रहे हैं, उस पर लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दे कैन नॉट क्लेम, अगेन आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज नो जीएसटी इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैगरी ऐसे दिया है, मेरे को भी नहीं पता, जैगरी दिया है, बिजनेसेस में अराइज may raise selling prices to recover the input costs, so input tax as such you won't be getting in this case। ठीक है। देन वी हैव नॉन जीएसटी सप्लाई। सो वही सब है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है। इस पे जीएसटी के स्कोप पे बाहर है, बट बाकी चीज़ें लग रही हैं इस पे। एक्साइज ड्यूटी इज बीइंग पुट, वैल्यू एडेड टैक्सेस आर बीइंग यूज्ड हियर एज वेल। ठीक है। सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी गिवन विद इन द जीएसटी रिजीम। ठीक है। वैट वगैरह में मिलेगा उनको, जैसे पहले मिलता था वैसे दे विल बी गेटिंग द आईटीसी, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन subsumed इन द जीएसटी regime, उनके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, ठीक है, देखो टोबैको वगैरह जो होता है, देखो सेंटर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस subsumed इन सीजीएसटी उसको देख रहे हैं। सो दे विल बी फर्स्ट लुकिंग एट what has been replaced with GST and the things which have not been replaced with the GST। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी को किसने रिप्लेस किसको करा है, जीएसटी ने वैल्यू एडेड टैक्सेस, मॉड वैट, सेन वैट, ये हमने पढ़ा था ऊपर, दोज हैव बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, तो जीएसटी प्लस जो सारे एक्साइज ड्यूटी वगैरह होते हैं, है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑल ऑफ दीज हैव बीन replaced। ठीक है, एंड व्हाट हैज़ नॉट बीन रिप्लेस्ड, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, द डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम एट्सेट्रा, दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। ठीक है, वो अपना जगह अलग ही है, दोज आर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सिमिलरली जो कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं ऑन इम्पोर्ट्स, वो सब दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है ऑन वही पेट्रोल डीजल, सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे, प्लस लिकर पे, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, बाकी यहाँ का जो भी है जीएसटी, सॉरी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट है, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये सब चीज़ें दीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। ठीक है, now we'll be looking at states indirect taxes which have been subsumed under the GST. So यहाँ पे जो the things which have been replaced with GST क्या क्या है, advertisement tax on hoardings or banners, entry tax, octroi, gambling tax, entertainment tax, luxury tax, ये सब चीज़ें, VAT on goods, ठीक है, all of these have been replaced by GST। now जो भी direct taxes रहेंगे state के, they have not been सब्ज्यूम्ड। ठीक है, वो दे वोंट बी रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, वो अपना जगह अलग चीज़ है। ठीक है, जीएसटी इज़ ओनली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देन वी हैव वैट ऑन 5 हाइड्रोकार्बन्स, पता ही है, लिकर, वो भी पता है हमको। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रोड टैक्स, परचेज टैक्स ऑन एनिमल व्हीकल्स, बोट्स, ये सब ना, इवन दे हैव नॉट बीन ब्रॉट अंडर द जीएसटी। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो अलग से लगेगा, रोड टैक्स है वो अलग से है, परचेज टैक्स ऑन एनिमल व्हीकल्स, दीज आर नॉट रिप्लेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन, ये सबको तो हमको पता ही है कि वो 5 हाइड्रोकार्बन्स पे नहीं लग रहा है, ये नहीं पता होता है हमको, है ना। दिस इज़ एन एक्सेप्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू फोकस टू मच ऑन द थिंग्स विच आर इनसाइड जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटसाइड जीएसटी क्या क्या है। ठीक है, सो फोकस ऑन दीज। तो क्या क्या रोड पे अगर चल रहे हैं उसका टैक्स वी हैव टू पे, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स यू हैव टू पे, परचेज टैक्स ऑन व्हीकल, एनिमल एंड बोट। सो अगर देखा जाए तो तीनों व्हीकल के टाइप्स हैं, मतलब एनिमल्स को छोड़ के vehicles and boats are means of transportation, and even animals are means of transportation sometimes। ठीक है, तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन उस पर लग रहा है टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजली पे भी लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लग रहा है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फिगर्स। सो ये अभी का नहीं इंपॉर्टेंट है सिंस द डेटा इज ओनली अप टिल 2024। ठीक है, सो this the GST registered suppliers deposit GST at the GSTN portal monthly। ठीक है, और उसी का कलेक्शन का there is a table that has been given, do not bother with this right now। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी टैक्सेस ऑन सर्विसेज। सो एक होते हैं ज़ीरो रेटेड सर्विसेज होते हैं और एक होते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, सिमिलर टू हाउ इट वाज फॉर गुड्स।
देयर वर टू टाइप्स, एक तो जीरो रेटेड रहेगा और एक रहेगा एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब लगा ही नहीं रहे हैं उस पर टैक्स, and zero rate is that 0% tax is being put, and it will be eligible for ITC. ठीक है। Similarly, the same similar thing happens when it comes to the services. So zero rated services क्या रहेंगे, they are taxed at 0% and the ITC can be claimed। ठीक है। So it is similar to what we had studied above। Examples क्या है इसके, exported services, satellite launch services by ISRO, all of these are zero rated। ठीक है। नाउ एग्जेम्प्ट सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा, देखो जीरो रेटेड कौन से, एक तो एक्सपोर्ट है और सैटेलाइट लॉन्च, तो बोथ दी सर्विसेज आर समथिंग विच द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट। ठीक है, इसलिए 0% लगाया है इस पे। एग्जेम्प्ट में दोज विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू GST, इसमें क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू GST ओनली, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है, मेडिकल सर्विसेज नहीं है, एजुकेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दीज आर exempt from GST altogether। ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, एंड ये देर मे बी अ क्वेश्चन कि इनमें से कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम GST, सो दैट थिंग यू शुड बी नोइंग। तो कैसे लर्न करना है, एक तो गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस रहेगा, इट वोंट बी सब्जेक्टेड टू GST। सिमिलरली जो भी, देखो ऐसे आप लर्न कर लो, कुछ भी सोशल एक्टिविटी हो रहा है ना, सोशल एक्टिविटी नहीं, सोशल वेलफेयर रिलेटेड कुछ भी है, बहुत बेसिक एक्टिविटी है, दोज विल नॉट बी, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सो एक तो गवर्नमेंट सर्विसेज है, गवर्नमेंट का काम ही क्या है, मतलब सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल है ना, सो दे आर नॉट अंडर GST। देन वी हैव मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर बेस्ड है ना। देन वी हैव एग्रीकल्चर सर्विसेज, मतलब खाना कैसे मिलेगा हमको, अगेन इट इज़ अ, ऐसे लर्न करने के लिए आप देख लो कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। देन यू हैव अगेन रिलीजियस एक्टिविटीज, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर। ठीक है। सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ वेलबींग ऑफ अ पर्सन, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। और जीरो रेटेड कौन से रहेंगे, वो जो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, सो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड इट ऑल्सो वांट्स टू प्रमोट सैटेलाइट सर्विसेज बाय ISRO। ठीक है। सो बोथ ऑफ देम आर जीरो रेटेड, हाउएवर इन द फ्यूचर दीज माइट बी, मतलब बढ़ा सकते हैं इन पे परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट, ये फिर से रिपीट हो गया है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, कि GST रेट अगर ज़ीरो रेटेड ऑन गुड्स या एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो वही है, ITC विल बी अलाउड इन ज़ीरो रेटेड के केस में, एंड फॉर एग्जेम्प्ट वंस नो GST इज बीइंग पुट। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, ज़ीरो रेटेड में आएगा फ्रेश मिल्क, live animals, unbranded food, medicines, exported, even medicines, do remember this। then exported goods। ठीक है। फिर नील या exempted वाले में आएगा प्रसाद, खादी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, जुडिशियल स्टैम्प्स। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट GST ऑन मिलेट्स। तो मिलेट्स किस में आ जाएगा, देखो जो अच्छा, जो अनब्रांडेड वाला होता है, अनब्रांडेड आइटम्स हैं, वी नो दैट दे आर जनरली कमिंग इन द ज़ीरो रेटेड वंस। ठीक है। तो ज़ीरो रेटेड में अनब्रांडेड फूड आएगा, जो ऐसे लूज मिलता है ना हमें, चावल वगैरह भी, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर अनब्रांडेड फूड, एंड दैट इज अट्रैक्टिंग ओनली 0% GST। हाउएवर अगर प्री पैकेज्ड रहेगा कोई भी मिलेट, किसी बढ़िया पैकेट में एंड ब्रांडिंग करके कहीं पे बेच रहे हैं, देन दैट विल अट्रैक्ट नियरली ये 18% या 5, देर विल बी अ प्रॉपर GST रेट बीइंग अप्लाइड टू इट। ठीक है। वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब था, 2023 में था। सो आई हैव अ वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स को डेडिकेट करते हैं ना, कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए, आई हैव ट्राइड टू, मतलब वो सारे मैंने लर्न करवाए हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यूनाइटेड नेशंस के डिकेड्स भी होते हैं। ठीक है, ईयर्स होते हैं एक तो, एंड देयर इज ऑल्सो डेकेड्स, UN डेकेड्स।
both of these I have made two videos. ठीक है, and it is very helpful because I have given a lot of tricks in that as well. So if possible go through those videos because ये जैसे अभी ये तो 2023 का दिया है, उसमें सारा up till I think I have covered them till 2030, so that for any question you can answer it. ठीक है, go through that as well because these are important. ठीक है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ये सब चीज़ें ना, दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम. इसमें क्या होगा, अ, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इनिशियली जब जीएसटी रिजीम स्टार्ट किया था तो दे वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, एंड ओवरऑल ऑल्सो इवन टुडे दे सिंस दे आर क्वाइट स्मॉल ट्रेडर्स और उनका क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल्सो क्वाइट लेस, so it becomes very cumbersome for them to deposit GST returns monthly, पूरा फाइल करना ये सब है ना, GSTN पोर्टल पे अपडेट करना, it becomes quite difficult. And that is why government has given them a period of 3 months, so they do not have to file it every month, but they can deposit the GST and update everything on the GSTN portal within 3 months. ठीक है, so that is what the GST composition scheme is about. ठीक है, so it is a relief given to small traders, and instead of depositing GST monthly they must deposit it every 3 years, 3 months. ठीक है, and how do you remember this composition? तो इसको ऐसे कर लो, कंपोज करने का टाइम दे देते हैं वो, टाइम given to small traders to compose themselves and deposit GST calmly. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या रहेगा, अच्छा उसका मीनिंग बताना है ना. सो व्हाट हैपेंस इज दैट स्टैंडर्ड टर्म्स में क्या होता है, जो जीएसटी होता है ना, द सेलर विल बी कलेक्टिंग द जीएसटी एंड रेमिट्स द जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ठीक है, ये दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग विच हैपेंस. ठीक है, हाउएवर इस केस में क्या रहेगा, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, द बायर विल बी द वन हु विल बी remitting the GST directly to the government. So this will be happening only in specific scenarios where the seller is unregistered. ठीक है, so I'll just show this to you via an example. So for example this is a shopkeeper. ठीक है, शॉप है इनके पास में और यहाँ पे कोई भी आया, ABC XYZ आ गया. ठीक है, नाउ ही वांट्स टू बाय अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स. ठीक है, पार्ले जी चाहिए इनको. सो व्हाट विल हैपन इज दैट ये यहाँ पे बेच देगा कितने भी पार्ले जी को MRP पे. MRP में द टैक्स इज इंक्लूडेड, GST विल बी इंक्लूडेड इन दिस. देयरफॉर जो टैक्स मिला, इनडायरेक्ट टैक्स, दिस पर्सन द शॉपकीपर विल बी रेमिटिंग दिस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, GSTN पोर्टल पे अपलोड करके ये सब कर देंगे वो. ठीक है, दिस इज हाउ नॉर्मल फंक्शनिंग हैपन्स. हाउएवर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, रिवर्स ऑफ दिस विल हैपन. ठीक है, मतलब कि द पर्सन XYZ जो कंज्यूमर आया, ही विल बी द वन हु विल बी रेमिटिंग द GST टू द गवर्नमेंट एंड नॉट द सेलर, नॉट द सेलर. ठीक है, बायर विल बी द वन हु विल बी रेमिटिंग इट. तो ये कब होगा, व्हेन द सेलर इज नॉट रजिस्टर्ड विद द GST रिजीम. ठीक है, तो ये वैसे ये तो लास्ट स्टेज है ना हमारी सप्लाई चेन का. दिस हैपन्स जनरली इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द सप्लाई चेन. ठीक है, जो दोनों ही ट्रेडर्स हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तब दिस जनरली हैपन्स. ये ऐसे कंज्यूमर तो वैसे कभी करता नहीं है कि चलो मैं टैक्स गवर्नमेंट को दे देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज प्राइमरली फॉर द मिडिल स्टेजेस ऑफ अ सप्लाई चेन. ठीक है, तो in this the buyer will be the one who will be remitting the GST to the government. नहीं तो सेलर ही खुद ही करता है. ठीक है, की एसोसिएशन क्या है,
हाँ, बस आपको इतना एग्ज़ैक्ट डिटेल्स पता होने की ज़रूरत नहीं, यू शुड जस्ट नो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या है और स्टैंडर्डली व्हाट हैपेंस, और उसी का रिवर्स हो जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में, ठीक है? नाउ वी लुक एट ई-वे बिल सिस्टम। अगेन दिस ई-वे बिल सिस्टम इज़ रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कोई ट्रक ट्रक या कुछ कैरी कर रहा है सामान, if the goods value exceeds 50,000 rupees, then they have to come up with an e-way bill, ठीक है? तो उसमें क्या बिल रहेगा एक, उसमें देयर विल बी अ सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरे जो भी ट्रक है या जो भी व्हीकल है उसमें दीज और ऑल द गुड्स, पूरा लिस्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद द प्राइसेस विल बी गिवन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, द देयर विल बी रिड्यूस्ड ब्राइबरी, डिलेज एंड हैरेसमेंट एट द चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स मतलब टोल बूथ और अलग दूसरे चेक पॉइंट्स भी होते हैं ना, उन सब पे वो सब नहीं होगा, हैरेसमेंट ऑफ द ड्राइवर, एंड इट विल फैसिलिटेट फास्टर एंड स्मूदर ट्रांसपोर्ट, ठीक है? एंड इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018 onwards. सो यू जस्ट नीड टू नो कि ई वे बिल सिस्टम है, दिस इज़ रिलेटेड टू जीएसटी, एंड ये जीएसटी इन पोर्टल के थ्रू दे डाउनलोडेड और वट एवर। बस ये बस इतना ही पता होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स, बस इतना। दिस इज़ प्राइमरली फॉर वही फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है? नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट ई इनवॉइस फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो इसमें क्या है, देखो देखो बस डिफरेंस दिया है ई वे बिल और ई इनवॉइस में यहाँ पे, है ना? देखो ई वे बिल कौन जनरेट करता है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट कंपनी themselves who will be generating this and handing it over to the driver, ठीक है? whereas ई इनवॉइस कौन जनरेट करेगा, इट विल बी जनरेटेड बाय द बिजनेस हु सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज। सो ये अलग चीज़ है, ई वे बिल इज़ प्राइमरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। तो बिल, इसका बिल वैसा कुछ नहीं है कि जो एग्जैक्ट बिल होता है ना हमारा इनवॉइस, वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट, मतलब वैसे ही ट्रक अपना सामान लेके जा रहा है तो उसको रोकेगा नहीं कोई भी रास्ते में, वो ही दिखा सकता है उसको कि ये मेरे पास है सामान, ठीक है? वेराज ई इनवॉइस क्या है, ये दिस इज़ अ नॉर्मल बिल, ये मैंने इतना सामान बेचा है एंड समवन हैंड्स ओवर अ बिल टू यू, दैट इज़ व्हाट एन ई इनवॉइस इज। दिस विल नॉट बी इन अ फिजिकल फॉर्म, दिस विल बी इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है? दैट इज़ द ओनली थिंग फॉर व्हेन इट कम्स टू ई इनवॉइसेस, ठीक है? तो जनरेटर कौन, वही यहाँ पे वही दिया है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, बस इतना ही है जो मैंने बताया है ना, दैट इज़ द ओनली थिंग, ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू रीड दिस यू कैन गो थ्रू दिस, बट एज सच कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, व्हाई इज इट बीइंग गिवन? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजंस अबव, कि जैसे एक तो होता है कि हमारा इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, देयरफॉर द प्रोड्यूसर स्टेट्स विल बी सफरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टेट वैट हैज़ बीन रिमूव्ड इन द जीएसटी रिजीम, है ना? तो स्टेट्स विल बी लूजिंग देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है? सो वील जस्ट गो थ्रू दीज वंस। रेवेन्यू लॉस का कंसर्न है, दैट इज़ वाई देयर इज अ कंपनसेशन विच इज़ बीइंग ऑफर्ड। सो जो वैट था हमारा, है ना, विच वॉज levied by the state, that has been subsumed by the GST, ठीक है? मोर ओवर इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, नॉट एंड अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है? सो जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं दोज विल बी एट अ डिसएडवांटेज, वही यहाँ पे दिया है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एट्सेट्रा, दे विल बी लूजिंग देयर रेवेन्यू, ठीक है? सो एग्जाम्पल वही यहाँ पे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू दिस थिंग बिफोर, कि गुजरात में क्या कार बना रहे हैं और यूपी में बेचा, सो यूपी विल बी द वन विल बी गेटिंग द स्टेट जीएसटी, नॉट गुजरात, ठीक है? सो इट विल बी disadvantageous to the producer states या industrialized states, ठीक है? That is why compensation is being offered.
अपार्ट फ्रॉम दैट क्या दिया है, हाँ, हाउ लॉन्ग विल दिस कॉम्पनसेशन लास्ट, सो इट वॉज ओनली फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो 2017 में स्टार्ट हुआ था, सो 5 years वहाँ से कब तक हो जाएगा, 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, द डेट क्या है, फ्रॉम जुलाई 2017 टू जून 2022। ठीक है, इट वॉज ओनली फॉर फर्स्ट 5 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, मैकेनिज्म क्या है जी, अच्छा वही, ये हो गया ना, यहाँ कंपनसेशन फर्स्ट 5 years के लिए है। नाउ वील बी लुकिंग एट द मेथड ऑफ गिविंग दिस कॉम्पनसेशन, कि इसको प्रोवाइड कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा पैसा। सो पैसे कलेक्ट करने के लिए दे केम अप विद द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, सो दिस विल प्राइमरली इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ कॉम्पनसेशन टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये वही दिया है यहाँ पे, एंड इट वॉज levied from July 2017 to June 2022। मैकेनिज्म क्या है, वही, पार्लियामेंट विल बी इनैक्टिंग द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ठीक है, सो दे केम अप विद दिस एक्ट and the GST Council had recommended a GST compensation cess। ठीक है, so remember the act name and year, GST Compensation to States Act। So this is primarily levied on luxury goods and demerit goods। ठीक है, सो डीमेरिट गुड्स मतलब वो जो सिन गुड्स होते हैं ना, जैसे ये टोबैको प्रोडक्ट्स है ना, उन चीज़ों पे दीज आर बीइंग लिवाइड। ठीक है, तो क्या क्या है, पान मसाला पे, टोबैको प्रोडक्ट्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, ये सब किस में आता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में। फिर कोल लिग्नाइट उस पर भी लग रहा है, मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, या aircrafts। ठीक है, all of these, on all of these GST compensation cess is being levied। ठीक है, now there's this news कि GST compensation cess was extended till 2026। so earlier it was only till 2022, that is 5 years के लिए था, but then it was increased, the time period was increased up till March 31st 2026। and the main reason for this was to address the revenue shortfalls from COVID-19 crisis। पहले एक तो जीएसटी आया, फिर कोविड-19 क्राइसिस भी हो गया था, सो स्टेट्स वर अंडरगोइंग अ वेरी बिग फाइनेंशियल क्रंच। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट देम the time period was increased up till March 31st 2026। now we'll be looking at the GST related organizations। ठीक है, so first of all we have the authority for advanced rulings। so ये इसमें क्या रहेगा, जो जीएसटी रेट्स में देर आर सर्टन एम्बिग्विटीज विच एग्जिस्ट, मतलब अनक्लियर रहता है कुछ कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप, एग्जाम्पल दिया था, ये दिस इज एवरीथिंग इज फ्रॉम रोनाल्ड सर्स नोट्स ओनली। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिससे डायबिटिक फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उन पे 12% जीएसटी लगता है ना। सिमिलरली, बट इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि डायबिटिक ये फूड सप्लीमेंट है, तो इस पे फूड का लगेगा कि मेडिसिन का लगेगा, कि क्या चीज़ लगेगी, है ना। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अनक्लियर या कन्फ्यूजन कहीं पे भी हो, वहाँ पे यू कैन गो टू द AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स। देन ही हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइज्ड मिल्क में देयर इज 0% जीएसटी, बट जो अमूल का कैमल मिल्क है विच हैज़ डायबिटिक बेनिफिट्स, उसमें जीएसटी रेट क्या लगेगा, वो जीएसटी उसको डायबिटिक फूड सप्लीमेंट में काउंट करेंगे या पास्चराइज मिल्क में काउंट करेंगे, दैट विल रिमेन, दैट इज़ अ कन्फ्यूजन, है ना। सो फॉर सॉल्विंग दीज थिंग्स यू दिस कंपनी कैन गो टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स। ठीक है, वो दिया है यहाँ पे। देन सोल्यूशन क्या है, इट विल प्रोवाइड एडवांस क्लैरिफिकेशन। बस यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बॉडी, अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड rulings। It will provide advanced clarifications on GST application applicability। ठीक है, और इसी का एक appellate authority भी है, appellate authority for advanced rulings। वो क्या करेगा, it will be handling the appeals against the AAR's decisions।
ठीक है, तो AAR का जो भी डिसीजन है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो भी डिसीजन है, उसके लिए उसका कुछ भी अपील करा किसी ने, दैट दे विल बी हैंडलिंग। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके? इट विल रिड्यूस लिटिगेशन एंड हैरेसमेंट, ये सब दीज आर जस्ट जेनरिक बेनिफिट्स। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दीज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है GST ट्रिब्यूनल। अच्छा, और एपेलेट ट्रिब्यूनल भी उसका। तो देखो इसमें क्या है, GST ट्रिब्यूनल इज बेसिकली एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। उसमें क्या क्या रहेंगे, देयर विल बी सर्टन ऑफिशियल्स लाइक द एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट, ये सब लोग, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, एंड दे विल बी हैंडलिंग इनिशियल केस एडजुडिकेशन। ठीक है, देन देयर इज द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में कौन कौन रहेंगे, जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ये सब लोग, एंड दे विल बी हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देन यू हैव द GST 80s। ठीक है, ये क्या रहेगा, दीज विल बी स्टैट्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द CGST एक्ट अमेंडमेंट। और इनका क्या क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, दैट इज SC और SC का जज, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर्स एट्सेट्रा। द हेडक्वार्टर्स विल बी एट दिल्ली, बेंचेस विल बी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जूरिस्डिक्शन क्या रहेगा, वही जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो भी एक्ट्स आते हैं, ऑल ऑफ दोज, एंड पर्पस विल बी टू रिड्यूस बैकलॉग इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, तो GST ट्रिब्यूनल में there are primarily three bodies which come. First of all, we have the adjudicating authority. ठीक है, it will be handling initial cases। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखो, बाकी officials तो not very important to remember। Initial case adjudication will be be done by adjudicating authority। Then we have the first appellate authority। So as the name suggests, अपील के लिए यहाँ पे आना है। अगर ऊपर एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का सही नहीं लगा किसी को डिसीजन, दे कैन फाइल एन अपील इन द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, देन वी हैव द GST 80s। नाउ GST 80 वॉज, इसके बारे में देख लेते हैं। GST 80 का फुल फॉर्म रहेगा वही, GST एपेलेट ट्रिब्यूनल, GST एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही स्टैट्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी रहेगा ये, विच हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द CGST एक्ट, और देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे ये भी रहेंगे। बाकियों में, बाकी जो बॉडीज थे उसमें देयर वर नो जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, देन देयर विल बी अ जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर्स एज वेल। हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी ट्राई टू रिमेंबर दैट, GST अथॉरिटी का एपलेट ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर्स इज एट दिल्ली। ठीक है, फिर बेंचेस कहीं पे भी रहेंगे, और बाकी तो दिस इज जेनरिक के, सिंस इट इज़ अ ट्रिब्यूनल तो उसका काम तो यही रहेगा ना, टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस इन HCs एंड हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया है कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इसका नाम है CESTAT। हाँ, इसका ट्राई टू रिमेंबर द फुल फॉर्म। सो द नेम इटसेल्फ हियर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनका क्या काम है, इट विल हैंडल अपील फॉर यूनियंस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं एक्सक्लूडिंग द GST, ऑल ऑफ दोज कैन गो, इनका कोई भी जो भी डिस्प्यूट रहेगा, दे कैन गो टू द दिस थिंग सेंट्रल, सॉरी कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, इनका व्हाट इज द hierarchy? So first of all, they'll be having junior officers who will be looking at the dispute। then they have the commissioner, फिर CESTAT है, और उसके बाद में they can go to the high court or the supreme court directly। ठीक है, if they are still not convinced with the judgment, then they can go to high court or supreme court। ठीक है,
और जीएसटी का भी देर हैव अ सेपरेट एपलेट ट्रिब्यूनल, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस ईयर। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस कि जो जीएसटी है, इवन दो बोथ ऑफ देम आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं, इन सब के अम्ब्रेला में जीएसटी के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया है, और पूरा adjudication authority is different for GST and for the other indirect taxes, that is customs, excise and service taxes. There is a separate authority, separate vertical altogether। ठीक है, इनके लिए सारे अलग लोग हैं, इनके लिए अलग लोग हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वही है, जूनियर ऑफिसर, कमिश्नर, CSTAT और हाई कोर्ट रहेगा। यहाँ पे तीन चीज़ें थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देन यू हैड द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी एंड देन यू हैव GST एपलेट ट्रिब्यूनल। और यहाँ पे जूनियर ऑफिसर, कमिश्नर, CSTAT और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। नाउ वील बी लुकिंग एट द GST फिटमेंट कमेटी। सो फिटमेंट कमेटी है इसका नाम। So what is the composition? They will be having revenue officials from union as well as the states. Function क्या है? They will be examining proposals for GST rate changes and then they will submit these reports to the GST council, or accordingly the GST council will make the final decision based upon the committee's reports। ठीक है, तो ये बेसिकली एडम बॉडी रहेगा उनका। इनका क्या काम है, दे हैव टू एनालाइज के क्या क्या प्रपोजल आ रहे हैं जीएसटी रेट चेंजेस के, एंड दे मेक प्रॉपर रिपोर्ट्स एंड देन सबमिट टू द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल विल बी द वन मेकिंग द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये है फिटमेंट कमेटी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है जैसे टोबैको इंडस्ट्री का, देर मे बी वेरियस रिक्वेस्ट के कम करो जीएसटी, कम करो हमारे ऊपर, है ना। तो फिटमेंट कमेटी के क्या करेगा, फिटमेंट कमेटी विल take a survey, they'll prepare a proper report and they'll come to a conclusion कि बढ़ाना चाहिए कि नहीं। So for example they have recommended that there should be no reduction, then they'll pass on this recommendation to the GST council and GST council will be the one who will be giving the final decision on this। ठीक है, उनका बस देखो जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं, देखो सारे बस मिनिस्टर्स ही हैं। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी वन मोर यूनियन मेंबर, है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज टू पीपल देयर विल बी 31 मिनिस्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब इन लोगों को इतना कुछ पता नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वॉट एवर डिसीजन इज बीइंग टेकन हियर, इन इन लोगों के पास में बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स है कि हाँ ये कर दो, साइन करने का शक्ति है। ठीक है, मतलब ऐसे असली में ऐसे ही होता है। वैसे हम बोलते रहते हैं कि जीएसटी काउंसिल है ये, बट मेन वर्क इज बीइंग डन बाय द जीएसटी फिटमेंट कमेटी। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, है ना। सो ये हो गया। ठीक है, एंड बट डू रिमेंबर दैट द कमिटी रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी नेटवर्क विच इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट। जो जीएसटी एंड नेटवर्क कंपनी है, दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ओनरशिप क्या क्या है, पहले 2013 से 2018 तक 16 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। यूनियन गवर्नमेंट है 24.5%, देन स्टेट गवर्नमेंट है 24.5, तो टोटल कितना हो गया इन लोगों का मिला के, बिकम्स 49%, है ना। देन द रेस्ट 51% इज विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट हाफ हाफ कर लिया है, यूनियन गवर्नमेंट हैज 50, स्टेट्स हैव 50 एंड अदर और किसी के पास नहीं रहा। ठीक है, so this is something which you should remember। functions क्या है, they will be operating the GST online portal, है ना, and provide IT infrastructure, software services to GST officials। ये सब है, these are normal जो भी फंक्शंस है कि जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑपरेट करेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, देन डेवलपमेंट, हाँ वो ये सब प्रोवाइड करेंगे, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द असिस्टेंस ऑफ इन्फोसिस।
ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो इन द फ्यूचर इट विल also carry dating data sharing exercises with RBI's public credit registry. मतलब आपको पता होगा, वी हैड read about this in earlier chapters, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काफ़ी सारी होती हैं, है ना। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई हैज़ इट्स ओन नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है। तो इससे होता क्या है, जो भी पर्सन क्रेडिट लेने जा रहा है उसका हमें क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है ना, एंड अदर पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री पता चल जाती है। दिस फाइनेंशियल हिस्ट्री हेल्प्स अदर इंस्टीट्यूशंस टू गिव बेटर लोन, मतलब लोन देने में, है ना, उसमें दे इट हेल्प्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो उसके लिए दिस जीएसटी डेटा में ऑल्सो बी यूज इन द फ्यूचर। ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंशनड है। सो बाकी इसमें बस ट्राई टू रिमेंबर द ओनरशिप स्ट्रक्चर, कि हाफ इज बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द अदर हाफ बाय द स्टेट्स। ठीक है। बाकी ये भी आपको याद रखना है कि इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट private limited company under the Companies Act. Next, we are looking at GST Suvidha providers. So, GST Suvidha providers are just private companies, private fintech companies हैं, ठीक है। आईटी या फिनटेक कंपनी है, उनका एज सच कुछ इम्पोर्टेंट क्या काम है, फैसिलिटेटर का काम है, फैसिलिटेटर। ठीक है। दे विल डेवलप एप्स सॉफ्टवेयर फॉर टैक्स पेयर इंटरेक्शन विद द जीएसटी इन पोर्टल। ठीक है। तो दे मेक द इंटायर एक्टिविटी मोर इजी, है ना, कि कोई भी शॉपकीपर है उसको अपना सबमिट करना है जीएसटी, देन एक ऐप बना दिया है, फॉर एग्जांपल ज़ोहो अकाउंटिंग, है ना। सो दैट ऐप विल इनेबल द शॉपकीपर और ट्रेडर टू इजीली फाइल फॉर जीएसटी, आईटीसी और जो भी है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट वट। ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का मतलब क्या है। बाकी ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। प्राइवेट आईटी और फिनटेक कंपनीज। ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट प्रोजेक्ट सक्षम। सो प्रोजेक्ट सक्षम क्या है, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सीबीईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, या अभी उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। तो इनका क्या काम है, डिजिटल इंटीग्रेशन। सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर इंश्योरिंग डेटा कोऑर्डिनेशन अमंग्स 3 पोर्टल्स। ठीक है। तो बस इतना ही है प्रोजेक्ट सक्षम। इसके बारे में लेट मी चेक वंस। हाँ, हाँ वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आता है ये, है ना। एंड इट विल जस्ट फैसिलिटेट द जीएसटी रिजीम और डेटा कोऑर्डिनेशन बेटर कर देगा तीनों पोर्टल्स के अंदर। ठीक है। तो बस इतना याद होना चाहिए कि किसके अंडर आ रहा है ये। ठीक है। प्रोजेक्ट सक्षम इट इज़ रिलेटेड टू जीएसटी। सक्षम करना मतलब क्या होता है, अच्छा कर देना कुछ, है ना। सक्षम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, सक्षम मीनिंग, सक्षम मीन्स एबल। ठीक है। सो पूरा जो जीएसटी रिजीम है उसको फैसिलिटेट करने के लिए है ये, फैसिलिटेट। ठीक है। ये बस आप इतना याद रखना, प्रोजेक्ट सक्षम इज रिलेटेड टू जीएसटी एंड it is under CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Next, we'll be looking at HSN and SAC codes. ठीक है। These are basically GST classification codes. ठीक है। उनको देख लेते हैं हम लोग। So SAC stands for Service Accounting Code, है ना, और it has been developed by GST authorities and क्या क्लासीफाई करते हैं, इट क्लासीफाइज सर्विसेज फॉर जीएसटी रेट डिटर्मिनेशन। देखो ये बेसिकली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स हैं, मतलब कि क्या हुआ इनका, बहुत सारे सर्विसेज हैं हमारे पास, है ना, इनका एक लिस्ट बनाया रहेगा जीएसटी काउंसिल ने, है ना। उसके लिए देर आर सर्टन कोड्स टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नंबर कौन से नंबर में आ रहा है, दैट इज़ द कोड विच
दिस इज रेफरिंग टू। तो बहुत सारी सर्विसेज का लिस्ट बनाया रहेगा, है ना, अलग अलग सर्विसेज का अलग सीरियल नंबर या कोड रहेगा, ठीक है, वो है ये सर्विस अकाउंटिंग कोड डेवलप्ड बाय जीएसटी अथॉरिटीज, सर्विस क्लासिफाइज सर्विसेज फॉर जीएसटी रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो जैसे कोचिंग सर्विसेज के लिए ये होता है कोड, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे बहुत टाइप की सर्विसेज रहेंगी, जैसे कि होटल, होटल को क्या बोलेंगे हम लोग, पता नहीं, कुछ वर्ड होता है इसके लिए, फ्रेज होता है ना। देन होटल्स, होटल के लिए रहेगा सर्विसेज, देन देयर विल बी एयर ट्रैवल के लिए कुछ सर्विसेज रहेंगी, ठीक है। सिमिलरली देयर विल बी कोचिंग एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है दैट विल कम अंडर एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रॉपरली क्लासिफाई दीज and SAC codes have been made. Service accounting code has been come up with. Similarly, we have a harmonized system of nomenclature, HSN बोलते हैं। ये बनाया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, गुड्स को डिटरमाइन, दिस अर्लियर वन वाज फॉर सर्विसेज, डिटरमाइनिंग द जीएसटी रेट फॉर सर्विसेज, वेयर एज दिस वन इज फॉर गुड्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जर्दा कुछ भी है, इट कम्स अंडर द HSN कोड, दिस थिंग, दिस वन, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच हैज बीन गिवन। सो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड इज फॉर क्लासिफाइंग सर्विसेज, ठीक है। नाउ इसमें याद क्या रखना है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो कि कौन सी अथॉरिटी ने डेवलप करा है। सर्विस अकाउंटिंग कोड को तो इन्होंने जीएसटी अथॉरिटी ने डेवलप करा है, बट जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है, वो ये याद रखना कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टम्स के लिए मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ गुड्स को कर लो, हाँ। बेनिफिट्स, जस्ट लुक एट दोज वंस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड बिलिंग के लिए हेल्प करेंगे ये दोनों कोड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटाइजेशन एंड टैक्स अथॉरिटी का सर्वेलेंस के लिए, एंड ऑल्सो फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। देन वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन पैन, GSTIN एंड आधार, ठीक है। यहाँ पे वही दिया है। तो फुल फॉर्म तो वैसे आपको पता ही होगा पैन और आधार का। पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार सॉरी GSTIN स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। दीज आर सिंपल। देन वी हैव इनकम इशूइंग अथॉरिटी। पैन कार्ड कौन इशू करता है, इट इज़ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हु इशूज इट, whereas the GSTIN is issued by the सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। फिर एग्जांपल्स दिए हैं दोनों नंबर्स के। तो इसमें क्या होता है, जो पैन कार्ड होता है ना, इट इज़ जस्ट एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, 10 डिजिट्स का रहता है, ठीक है। वेराज जो GSTIN है दैट इज़ 15 डिजिट कोड, 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेट्स कोड, पैन कार्ड प्लस यूनिक कैरेक्टर्स। तो इसको ऐसे आप लर्न कर लो कि पैन कार्ड में पैन पैन मतलब 15 है ना, और इसमें 10 है, वेराज GSTIN में 15 है। पैन से 15 हो जाता है ना, 15, है ना। तो उससे यू कैन रिमेंबर दिस कि पैन 15, बट 15 इज इन GSTIN, वेराज पैन में 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो GSTIN कोड है उसमें देयर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल पैन कार्ड, पैन नंबर जो है वो भी प्रेजेंट होगा। Along with that you have the state code as well as some unique characters which will be added, ठीक है। Then who needs it, so a PAN card is required by income tax assessees, तो individuals हो सकते हैं, firms हो सकती हैं, है ना। Whereas GST किसके पास होगा, businesses which are coming under the GST laws, है ना, those will be included here,
ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ई कॉमर्स सेलर्स एक्सेट्रा। फिर रिलेशनशिप क्या है, नॉट ऑल पैन कार्ड होल्डर्स विल रिक्वायर अ GSTIN, बट all GSTIN holders must have a PAN card, because as we already read, वहाँ क्या रहेगा, इसका पूरा फॉर्मेट क्या रहेगा, you need the PAN number, along with that a state code as well as some unique numbers will be added, ठीक है। So PAN card is necessary to have a GSTIN number, ठीक है। then you have वन पैन पर एंटिटी का एक सिस्टम होता है, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू GSTINs, वेर इन मल्टीपल GSTINs कैन एग्जिस्ट फॉर द सेम बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट्स और सब्सिडरीज, ठीक है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट द कोड विल चेंज, बिकॉज हर स्टेट का देर विल बी अ सेपरेट कोड, ठीक है। सो देर विल बी सेपरेट GSTIN numbers for different, for the same business having different branches in different states, ठीक है। एंड पैन कार्ड का तो सेम ही नंबर रहता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है पैन का, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन, वेयर एज GSTIN का है वही प्रिवेंट GST इवेजन एंड फैसिलिटेट ITC क्लेम्स, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन पैन GSTIN एंड आधार कार्ड। सो कौन इशू करता है पैन कार्ड, वही इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है इशू। देन GSTIN इज बीइंग इशूड बाय दिस थिंग CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, so all of this comes under the Ministry of Finance, ठीक है। वेयर एज आधार कार्ड इज बीइंग इशूड बाय UIDAI, which comes under Ministry of Electronics and Information Technology, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये पता है ना आपको। फिर नेक्स्ट वी हैव लीगल बेसिस। लीगल बेसिस क्या है पैन कार्ड और GSTIN का, वी हैव पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड GST एक्ट ऑफ 2017। ये 2017 तो यूल बी एबल टू रिमेंबर इजीली, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद में 2017 में GST वॉज ब्रॉट इन, जून जुलाई में आ गया था ये, है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे लर्न करेंगे, 1950 में वी गॉट, इंडिया वॉज मेड अ रिपब्लिक, एंड 10 years आफ्टर दैट, 10 to 11 years आफ्टर दैट इनकम टैक्स वॉज बींग इम्पोज। वैसे ही लर्न कर सकते हो, और ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि 51 में फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट वॉज मेड, आफ्टर 10 years ऑफ दैट दे स्टार्टेड दी इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स लगाने लग गए, ठीक है। और ये आधार के लिए आधार एक्ट ऑफ 2016, तो इफ़ यू सी 2016 2017 में काफ़ी सारा काम हुआ था, है ना। तो वो डिमोनेटाइजेशन और ये सब, आधार एक्ट वॉज ऑल्सो ब्रॉट, है ना। ये ट्राई टू रिमेंबर दिस। देन यू हैव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन दोनों का क्या था, वही टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन ओवरऑल, है ना। बट आधार कार्ड का क्या है, टू एलिमिनेट बोगस बेनिफिशियरीज, देन गवर्नमेंट स्कीम्स का बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज एंड रिड्यूस सब्सिडी लीकेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, पैन नंबर इज अल्फा न्यूमेरिक कोड, वेयर एज आधार कार्ड इज अ 12 digit न्यूमेरिक कोड, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। देखो पैन में हमने क्या बोला था, 10 नंबर का था, GSTIN वॉज ऑफ 15 numbers एंड 15 मतलब डिजिट्स, डिजिट्स भी नहीं, इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक, सो 15 letters, ठीक है। वेर एज आधार कार्ड कंसिस्ट ऑफ 12 letters, ठीक है। देन वी हैव एलिजिबिलिटी। So, PAN or GSTIN can be issued to any individual, then firms, company, trusts, etc. Whereas Aadhaar card is only primarily for individuals, ठीक है, resident individuals, ठीक है, लिविंग रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, उनके लिए रहेगा ये। और रेजिडेंट इंडिविजुअल होने के लिए व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, यू नीड टू लिव इन इंडिया फॉर 182 days, दैट इज़ हाफ ऑफ अ ईयर, है ना। आधे साल से ज़्यादा तक यू शुड बी इन इंडिया, ठीक है। सो 182 days, दैट बिकम 6 months और मोर, है ना। नेक्स्ट वी हैव NRIs। NRIs के लिए पैन एंड GSTIN नंबर इज नॉट एप्लीकेबल, whereas NRIs having Indian passports, they have an ability to have Aadhaar card as well, ठीक है। then number per person कितना है, there is one PAN per entity,
whereas GSTIN number can differ based upon the state, है ना. And there is also one Aadhaar per person. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं फीस. ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ऐसे ही देख लो कि पैन कार्ड में यू रिक्वायर 110 रुपीज़ टू गेट इट मेड, और बाकी सब फ्री में आता है. एनरोलमेंट कंपलसरी है, वेर एज पैन कार्ड वगैरह के लिए कंपलसरी है, बिकॉज इट इज़ अ लीगल मैटर, है ना, क्योंकि टैक्स इवेजन प्रिवेंट करना है, सो इट इज़ कंपलसरी. वेर एज वेन इट कम्स टू आधार इट इज़ वॉलंटरी. ठीक है. नाउ इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है पैन और GSTIN के नेम में के केसेस में. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड? इट इज़ द नेम, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. ठीक है. दीज आर द थिंग्स विच आर स्टोर्ड. Whereas when it comes to Aadhaar card, we have the demographics. So we have name, gender, date of birth, address. Along with that, biometric details are also being stored of an individual. ठीक है. तो फेशियल फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, ये सब भी सेव करते हैं. ठीक है. और एक लिंकिंग करने का भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आधार कार्ड हैज़ टू बी लिंक्ड विद द पैन कार्ड. ठीक है. एंड दैट हैज़ बिकम कंपल्सरी. Next, we'll be looking at the benefits of GST. So this is not very important, but just have a look. मतलब just go through this, glance through this once. Not very important. तो क्या है, जैसे ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट होता है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट क्या होता है. इसमें क्या रहेगा, ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स, दैट मीन्स द GST rate which is being applied on that export will be 0%. However, if you remember, we have studied before कि कोई भी ज़ीरो रेटेड गुड रहता है उसमें ITC can be claimed, that is the input tax credit can be claimed. ठीक है. तो एक्सपोर्ट्स के केसेस में भी सेम रहेगा. गुड्स exported from India are subject to 0% IGST. However, the GST will be you will receive the input tax credit. So the person, the intermediaries who are there, they will be receiving the input tax credit, even though uh, the product is zero rated. ठीक है. So GST paid on raw materials, intermediate good becomes the input tax credit. Input tax credit can also be used to offset the future liabilities. एंड इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट्स. ठीक है. तो ये बेनिफिट है इसका. नेक्स्ट वो इम्पैक्ट क्या है, इट इम्प्रूव्स द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स. सिंस एक तो उस पर GST लग ही नहीं रहा है, 0% लग रहा है. ठीक है. प्लस ITC इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल, टू द एक्सपोर्टर्स, और जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उसके प्रोडक्शन में, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है. सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द एक्सपोर्टर्स. ठीक है. और alignment with international GST practices as well. ठीक है. So that is all for this chapter. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.